नबी हैं, यहूदियों के नबी हैं, सिखों के नबी हैं, सबके नबी हैं। वो मेरा नबी, उसका नबी, सबका नबी है। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी सबका पैगाम है। इसलिए आप सब जानते हैं कि इस इस्लाम को, इस मज़हब इस्लाम को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। चाहे वो अरब का रहने वाला हो या अजम का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो। ये मदारिस में दाई पैदा किए जाते हैं, मदारिस में दाई को तराशा जाता है। लिहाजा नमूने के तौर पर इस मस्जिद उम्मे खलील में चलने वाले इदारे तहफ़ीज़ुल कुरान के तहत मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक तकरीर पेश करने के लिए हुज़ैफ़ा इब्न नोमान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर पेश करें अंग्रेज़ी ज़ुबान में। मोहम्मद हुज़ैफ़ा इब्न मोहम्मद नोमान साहब आए हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा दीन इस्लाम इंशाअल्लाह अंग्रेज़ों को अमेरिका में जाकर हम दावत और तबलीग करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Honorable President, distinguished guests, scholars, Majlis Amila and dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to highlight the importance of madrasas before you. I hope that you will listen carefully. It is very deep and its history of madrasa is very old because it started from an important place in Makkah, the cave of Hira. This is the first teaching place of the Holy Quran, the first place of divine revelation, the first seminary in the history of Islam. The teacher of this madrasa, who was the Lord of the universe himself, and the student of this madrasa, who was the mercy of the universe, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Hazrat Jibreel, peace be upon him. He was doing the work of communication and interpretation between them. The first lesson of the seminary was Iqra, that means is read, which was the revelation of the Quran began. The second seminary in the history of Islam, Dari ibn Arqam, was Dari ibn Arqam at the beginning of the call to Islam when the land of Makkah became narrow for the Muslims. In this house, the beloved Prophet used to teach his books and at the same time cleanse them from wrong beliefs and bad morals. In the early days, there were students of this madrasa who brought Islam Ummah Karwan, passed through the valleys of Makkah and reached the holy Medina. Then the Prophet's mosque was built and a plinth sufa was established next to it, which was the third most important seminary in the history of Islam. There were students who were blessed by this madrasa of prophethood are remembered with the honorable title of competence of sufa, just as we. For example, the student who graduated from Jamia Islamia Kashiful Ulum Aurangabad are remembered with the title of Kashfi. Will madrasas are developing in the form of different global circles, and today, Alhamdulillah, we and you are using them in the present form. These madrasas played an important role in protection and survival of Islam by maintaining their existence and status in one way or another way, despite all the sufferings and difficulties, restriction and opposition in every age. These madrasas are such a torches of religion whose rays are illuminating the whole world and continue to do so until the day of resurrection. Ameen, inshallah. May Allah bless us with their application. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. भाई, हम अपने मेहमानान मुकर्रम का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना आज दिन भर बहुत मसरूफ़ रहे हज़रत, लेकिन इसके बावजूद हमारी चाहत पर ये हमारी ज़रा नवाजी है आपकी कि हमको अपने इस्तिफ़ादा का मौका इनायत फरमाए। बस एक आखिरी तकरीर पेश करके इंशाअल्लाह कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल करने वालों का दौर होगा, यानी वो आखिरी सबक पढ़कर अपने हिफ्ज़ को मुकम्मल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग मराठवाड़ा में रहते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठवाड़ा में रहते हैं। मराठी ज़ुबान यहाँ बोली और सुनी और समझी जाती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन हालात से न घबराते हुए मानवता का संदेश पूरी इंसानियत तक पहुँचाने के लिए मदरसों में ये भी फ़न और हुनर सिखाया जाता है
कि हमारे पास जो कुरान करीम है, हमारे पास जो अहादीस रसूल है, हमारे पास जो इस्लाम का पैगाम है, ये हम अपने मराठवाड़ा के गैर मुस्लिम भाइयों तक भी पहुँचाएँ। ये इसी मदरसे उम्मे खलील मदरसे तहफ़ीज़ुल कुरान के तलबा हैं जो आपके सामने अरबी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं और ये दावत का पैगाम अपने दिल में लेकर जा रहे हैं। और हमारे ये मदरसे के तलबा अच्छी सी अंग्रेज़ी बोलते हैं, अच्छा सा कंप्यूटर भी जानते हैं, दुनिया के उलूम से भी बहरावर हैं, 10वीं और 12वीं पास करके दुनिया के आंखों में आँख मिलाकर इस्लाम की खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हमें अपने इन मदारिस पर फ़ख्र है। लिहाजा मैं मराठी ज़ुबान में, हम चूँकि मराठवाड़ा में रहते हैं, मराठी ज़ुबान के एतबार से भी हमारे मदरसों में तैयारी की जाती है ताकि हम अपने पड़ोसियों को, अपने हमवतनों को, हम अपने बिरादरान वतन को किस तरह इस्लाम का संदेश उन तक पहुँचाए, इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत होती है। लिहाजा मराठी ज़ुबान में तकरीर पेश करने के लिए मैं मोहम्मद सुफियान इब्न नज़ीर साहब को ज़हमत देता हूँ कि वो आएँ और मराठी ज़ुबान में तकरीर का एक नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माननीय सभापती महोदय, सभेच्या मंचावर या आदरणीय विद्वान, आदरणीय पाहुणे आणि प्रिय विद्यार्थी, मी तुमचे सर्वांसमोर ज्ञानाचे महत्त्व आणि त्याचे उत्कृष्टतेबद्दल बोलण्याचे धडस करत आहे, म्हणून कृपया माझा भाषण लक्षपूर्वक ऐका। प्रिय सज्जन हो, ज्ञान आहे या काळात माणसाची सर्वात महत्त्वाची गरज। ज्ञान दिलेले असो व प्रापंचिक, ते शिकणे महत्त्वाचे असते। फरक एवढा आहे की प्रापंचिक ज्ञान मिळले तर प्रापंचिक गरजा पूर्ण होतील आणि धार्मिक शिक्षण मिळेल तर दोन्ही क्षेत्रात यश मिळेल। प्रिय सज्जनो, एक काळ असा होता जेव्हा फक्त अज्ञान अज्ञान होता आणि अंधारी अंधार होता। अशा प्रसंगी अल्लाह सर्व शक्तिमान देवानी प्रिय पैगंबरांना संदेशवाहक मानून पाठवला आणि हिराचे गोळेत अथराच्या हड्यावर पहिला साक्षात्कार प्रकट केला। देवदूत म्हणला, मी अशिक्षित आहे, मी शिक्षित आहे। प्रिय मास्तर म्हणले, मी साक्षर नाही, मला कसं वाचायचा ते माहीत नाही। म्हणून देवदूताने प्रिय गुरुचा सीना स्पर्श केला आणि वाचा आणि वाचा। मग प्रिय मास्तर वाचू लागले, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आपण साक्षर नसलो तर वाचन शिकण्याचा प्रयत्न करा, कष्ट करा। त्या विषयांचे ज्ञान मिळणे हे प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषाचे कर्तव्य आहे। त्याने काळजी करूया, स्वतःचा त्याग करूया। बऱ्याच वेळापासून आम्ही बघत आहात की लहान मुलं किती चांगले शिकत आहेत। हे बघा, तुमच्या समोर पदवीधरांचा एक गट बसलेला आहे। जेव्हा हे सेमिनरीमध्ये आले तेव्हा त्यांना कसं वाचायचा हे कळत नव्हता किंवा काही लिहायचा हे माहीत नव्हता। मग मजलिस आमिला प्रशासना देखरेखीखाली मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम जामा मस्जिद बुड्डीलांच्या शिक्षकांनी आणि मदरसेच्या सदस्यांनी त्यांच्यावर अथक परिश्रम केला की हे विद्यार्थी हाफिज कुरानच्या संपत्तीने श्रीमान झाले। म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही तुमच्या मुलांना कुरानचं समरण करून द्या आणि त्यांना मदरसा तहफीजुल कुरान काशिफाबाद मिटमिटामध्ये दाखल करा। धन्यवाद। माशाअल्लाह। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इस साल हाफिज़ बनने वाले तलबा का आखिरी सबक हज़रत के सामने वो पढ़ेंगे और ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हो जाएंगे। लिहाजा मैं हाफिज़ बनने वाले तालिब इल्म मिर्ज़ा ताबिश इब्न मिर्ज़ा वसीम बेग, जो हमारे बुड्डीलैंड औरंगाबाद के तालिब इल्म हैं और रहने वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हाफिज़ बन रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मिर्ज़ा ताबिश इब्न मिर्ज़ा वसीम बेग। और इसी तरह शेख ज़ीशान हारून, ये बालानगर पैठन के रहने वाले हैं। शेख हुज़ैफ़ा शेख अब्दुल मन्नान नेशनल कानून रोज़बाग के हैं। शेख कासिम इब्न शेख कलीम, और इसी तरह जो शेख अबरार शेख अनस मिर्ज़ा दानिश अब्दुर्रहमान और शेख फैज़ान, ये 9 तलबा स्टेज पर आ जाएँ और आखिरी सूरतें पढ़कर अपने हिफ्ज़ को मुकम्मल करें और ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हों।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ये जो प्यारे प्यारे मासूम तलबा के चेहरे आप देख रहे हैं, नूरानी चेहरे देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ तलबा है जिनको देखना भी सवाब है। आज हम दुनिया में कोई मैट्रिक पास करता है, 12वीं पास करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसकी बहुत बड़ी गुलपोशी होती है और ख़ानदान को दावत दी जाती है, फार्म हाउस बुक किए जाते हैं। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हमें इन हुफ़ाज़ तलबा की भी कदर करनी चाहिए ताकि हमारा दीन बाकी रहे। ये मदारिस इस्लाम के किले हैं जिनसे इस्लाम और ईमान की पावर सप्लाई की जाती है, इसलिए हमें इनको हिम्मत अफजाई से, प्यार मोहब्बत की नज़रों से देखना ज़रूरी है। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम जिस मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह ने जिनसे इस मस्जिद को बनाने का काम लिया है वो अलहाज खलील साहब, जिन्हें हम खलील चौधरी साहब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने अपने वालिदैन के लिए ये मस्जिद उम्मे खलील की तामीर की है। अल्लाह इनकी इस तामीर को कबूल फरमाए, दोनों जहानों में खैर और बरकत का और आफियत का और हिफाजत का ज़रिया बनाए। इनकी तरफ से
9 तलबा के लिए नजराना मोहब्बत बशक्ल लिफाफा पेश किया जा रहा है। इसी तरह मोहम्मद साजिद भाई मिटमिटा के हैं, इनकी तरफ से कुरान पाक और एक हाथ की घड़ी भी इन तलबा को दी जा रही है। इसी तरह मोहतरम हबीब भाई कुरैशी साहब जो मिटमिटा के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से इन निहालान मिल्लत को रुमाल, टोपी, अत्र दिया जा रहा है। और मोहतरम कलीम भाई जो बिड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक रुमाल, कीमती रुमाल इन तलबा को हदिया दिया है। इसी तरह आप जानते हैं कि जामिया इस्लामिया अशलूम की जामे मस्जिद में शब मेराज के मौके पर भी बहुत बड़ा जलसा होता है और हुफ़ाज़ तलबा की वहाँ पर गुलपोशी होती है, उनको नजराना अक़ीदत पेश किया जाता है। जामे मस्जिद में भी इन तलबा को बैग, शॉल, ड्रेस, दीवार घड़ी और अमामा इनके हदिये में पेश किया गया था। लिहाजा मैं हाफिज़ रईस साहब जो यहाँ के उस्ताद और ज़िम्मेदार हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तक़सीम इनामात करके इन तलबा को हिम्मत अफजाई करें। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बहनों के लिए एक ऐलान करना चाहता हूँ। जो मेरी बहनें बैठी हैं हॉल के अंदर, वहाँ उनके पास नौनिहालाने मिल्लत यानी बच्चे भी हैं जो शोर कर रहे हैं। एक बात आई है कि बहुत शोर हो रहा है। आप मस्तूरात से और मेरी बहनों से, मेरे माओं से दरख्वास्त है कि अपने अपने बच्चों को हद इम्कान खामोश करने की कोशिश करें, सुकून का, खामोशी का माहौल बनाएं। और मेरी बहुत सारी बहनें बाहर खड़ी हैं जिनको हॉल में जगह ना मिल सकी, तो कुछ मदद के लिए वहाँ पर बच्चे खड़े हैं, उनसे आप मदद हासिल करके, कुछ हॉस्टल के अंदर भी इंतज़ाम किया गया है, कमरों में इंतज़ाम किया गया है, आप सुकून से इत्मीनान से बैठे ताकि हम हजरत की बात को सुकून से आराम से सुन सकें। हाफिज़ रईस साहब से दरख्वास्त है कि एक एक तालिब इल्म को एक एक लिफाफे देते जाए। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना सैयद जाफ़र मसूद हसनी दामद बरकातहुम को ज़हमत देना चाहता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से एक तालिब इल्म को इनाम से नवाजें। तीन तलबा को हज़रत मेहमान खुसूसी के दस्ते मुबारक से इनाम दिया जाए। तीन तलबा को हमारे अलहाज खलील चौधरी साहब के हाथों से इनाम दिया जाए। इसी तरह सदर मजलिस आमिला अलहाज अब्दुल जब्बार साहब के ज़रिए से, उनके मुबारक हाथों से भी अब्दुल मन्नान साहब के दस्ते मुबारक से इन तलबा की हिम्मत अफजाई की जाए। आइए पठान साहब के ज़रिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इस इलाक़े के हमारे इस मदरसे के बहुत मुहिब हैं, अल्लाह इनके कबूल फरमाए। अलहाज हमारे अब्दुल जब्बार साहब से भी सदर साहब हैं हमारे, उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने दस्ते मुबारक से इन तलबा की हिम्मत अफजाई फरमाएँ। हमारे अलहाज ज़फ़र भाई साहब के हाथों से एक एक इनाम इनको दिया जाए। अलहाज नियाज मोहम्मद साहब से भी दरख्वास्त है कि अपने मुबारक हाथों से इनाम दें। आइए मोहतरम सामाईन, आप मगरिब से बैठे हैं, बहुत वक्त हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने तलबा की हिम्मत अफजाई भी बहुत अच्छे से की है। मैं आपके समाअत की दाद देता हूँ कि बहुत सब्र तहम्मुल से आप बैठे हैं और ये गारंटी है, दलील है कि हमें कितनी मोहब्बत है मसाजिद से, मदारिस से, कुरान पाक से। अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। मैं एक मरतबा फिर अपनी मस्तूरात और अपनी बहनों से अर्ज़ करता हूँ कि आप खामोशी का मुजाहरा करें और जहाँ जगह मिले वहाँ इत्मीनान से बैठे ताकि हम हज़रत की बात को बगौर समाअत फरमाएँ। अब मैं बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के हज़रत मौलाना जाफ़र मसूद साहब दामद बरकातहुम जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ के नाज़िर आम है, बहुत मेहनत उनकी है और हम उनको सुनने के लिए बेताब बैठे हैं। मैं हज़रत से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन।